Audio Jungle. What is difference between C and Objective C? Objective C is iOS based programming can be done on Objective C, and C is a general which can run even on iOS as well, on Linux, any OS actually, as well as Windows. Objective C is basically used by Apple Mac. You understand, Ashutosh? Yeah, thanks. Okay. Why to start computer programming from C language? Okay, this is for all those who don't have anything on a computer, right? They don't know how to switch on the computer or mouse, right? How to handle the mouse, right? From that point to a profession having expert in Angular directly, because there are many uh, students I've seen, right? They don't know C, but they know the programming, right? So as somebody said, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर मेरे को आता है, मेरे को क्या जरूरत है सी प्रोग्रामिंग सीखने की? So all languages are based, somehow they are based on the C language. So if you know the C, you know the root, right? If you know the how the root has been built, right? तो जावास्क्रिप्ट रहने दो या वो स्क्रिप्ट रहने दो या टाइप स्क्रिप्ट रहने दो, कुछ भी रहने दो, कोई भी टाइप का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहने दो, वीबी स्क्रिप्ट रहने दो, VB.NET रहने दो, डजंट मैटर क्या है, राइट? या क्लाउड प्रोग्रामिंग रहने दो, उसका बेस सारा सी में है समवेयर, राइट? सो इफ यू लर्न द बेस, next language will be easy to learn, right? And that is why I started this journey along with you from C, not from C# or C++. Okay. Considering okay, so yeah, that second last point you can see, considering it was created over 40 years ago, right? So it was created in 1972, so almost 40 years back, right? Almost 40 years back, and still it is going on. It's still used heavily and usually in the top 5 or 10 most popular and most widely programming language in the world. And that is the reason you have to learn C if you want to be in the programming field. Do you understand the importance of learning of C? Hello? Oh, just a minute. My mouse. Yeah, it's clear, right? Why C is important. Yeah. Thanks, Shubhangi. Thanks, Shamli. Great. So this is importance of C. Learning C can actually make you better programming, right, in other language than Java or C# by equipping you with mental model of what computer is, doing it. Computer is actually doing when you run your program. So yeah, on this point, in my first video, which I shared with you all, right? Somebody have seen that, somebody have not seen. Go and watch that video, subscribe that channel so that all these videos will come to you, right, as a notification. So वहां पे मैंने एक बात कही है कि मेरे को कोई काफी सारे पेरेंट्स के फोन भी आए कि सर आप सेशन ले रहे हो, मेरे बच्चों के लिए मैं कंप्यूटर वगैरह परचेस करूँ क्या इमीडिएटली? तो पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, in spite of COVID pandemic, layoff and less salary and all this stuff, they are ready to do anything for their kids, right? So I said no, you don't need to buy any that device if you don't have. If you have, that is better. If you don't have, don't do that. Mobile or internet or पेन और नोटपैड या नोटबुक, ये 4 चीजें और आपका खुद का दिमाग, ये 5 चीजें अगर रहेंगी तो सी आपको सीखने से कोई रोकेगा नहीं. सो व्हाट आई एम सेइंग, सी प्रोग्रामिंग में आपका एक्चुअल मेंटल एबिलिटी यूज होती है, राइट? आप अगर ग्रिड बनाने जाओगे एंगुलर में, फॉर दोज हु नोज जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर, राइट, अलर्ट बनाना है आपको, तो अलर्ट का सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो अलर्ट आ जाता है, बट बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है उसके.
वो आप तभी समझोगे आप जब आपने सी में बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया होगा, तब आपको हर एक मोमेंट का, हर एक मेमोरी का। हाउ मेनी ऑफ यू सेड कि यार ये मोबाइल का रैम बहुत कम है यार, इसका स्पीड बहुत कम है, अच्छा नहीं है मोबाइल। हाउ मेनी ऑफ यू हैज दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस? यस चैतन्य, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी। गिनी, थैंक यू। So we have people, right? We multiple times say that यार ये क्या मोबाइल है यार, डब्बा मोबाइल है, ये स्पीड भी देता नहीं, कुछ नहीं देता। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? मोबाइल के हार्डवेयर में प्रॉब्लम रहेगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर में। आशुतोष, यू कैन डाउन योर हैंड। थैंक्स। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, राइट, इफ दे आर ईटिंग योर मेमोरी, राइट। पहले तो 100 MB वगैरह मेमोरी आता था, अभी तो 4-4 GB और 8-8 GB, 16 GB का भी 64 GB तक रैम दे रहे हैं अभी, जो कि पहले कंप्यूटर में भी नहीं थे, डेस्कटॉप में नहीं थे, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी। व्हाई दे आर गिविंग दोज मेमोरी, दैट मच मेमोरी? और जब काम करते थे लोग, इवन बिफोर माय बर्थ, राइट, दे वर वर्किंग ऑन 100 MB। तो एक वेरिएबल का वैल्यू डाला तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू वो डाल नहीं सकते, क्योंकि पहले ने ऑक्यूपाई किया। तो दे हैव टू मैनेज दैट मेमोरी बाय देमसेल्व्स, नॉट बाय गार्बेज कलेक्टर, यू नो जो अभी बना हुआ है। गार्बेज कलेक्टर वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं थी। गार्बेज कलेक्टर बनने का काम प्रोग्रामर का था उस समय। समझ में आ रही है क्या आपको बात? न्यू से अगर अलोकेट किया है C++ वाले या जावा वाले प्रोग्रामर के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपने न्यू किया है और आपने डीअलोकेट नहीं किया तो वो मरने वाला ही है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, राइट? एक एक बीट और एक एक बाइट का जो सवाल है ना, वो सी सिखाती है आपको, उसका इंपॉर्टेंस सी सिखाती है। अपने पूर्वज अपने को बोलते रहेंगे, भाई पैसा थोड़ा संभाल के यूज करना है यार, हम तो एक एक पाई का हिसाब रखते थे और एक एक पाई संभाल के यूज करते थे। तो वो एक एक पाई मतलब अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में एक एक बीट है। ईच बीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फॉर दोज हु से कि ये मोबाइल बहुत स्लो है यार, ये डब्बा हो गया है क्योंकि इसका ये स्पीड नहीं दे रहा है, दूसरों का अच्छा वाला मोबाइल देख के हम बोलते हैं कि यार मेरा तो डब्बा हो गया है, चलो दूसरा लेते हैं, राइट? So for them, problem is in RAM. So clean up your RAM, use optimum applications, it will give you speed, right? Okay. So तो ये सारी बातें हैं सी के रिलेटेड और अपने ह्यूमैनिटी के रिलेटेड। So let me proceed on the next slide. Okay. Let's start. Listen and talk on C. तो अभी तक क्या किया फिर हमने, है ना? ऐसा भी कोई लोग बोलेंगे अभी तक हमने सी पे बात ही नहीं किया। अभी तक हमने जनरल बातें की, बहुत जनरल बातें की कि प्रोग्रामिंग करने के लिए वो माइंडसेट होना चाहिए आपका कि हाँ मेरे को बैठ के प्रोग्राम करना है, राइट? आप कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे, बट प्रोग्राम डेफिनेटली बन सकते हैं अगर आपके पास दिमाग है एंड यू आर लॉजिकल, राइट? तो देर इज नो प्रॉब्लम, यू डेफिनेटली कैन लर्न इट। सो कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कंपाइलर एक प्रोग्राम है अगेन जो सी प्रोग्राम लिखने के लिए रन करने के लिए लगता है। अब ये रन क्या होता है, कंपाइल क्या होता है, राइट? लेट मी टेल यू सिंपल एग्जाम्पल व्हाट इज कंपाइलर, राइट? आपके सामने ओके, somebody chat, प्लीज ऐड माय मोबाइल नंबर। साइरस का हो गया as we know that YouTube is written in C, Python, Go. How all these languages are included? Very good question actually, Ashutosh. This is really good question. You'll understand. That is how the programming world going on now. It's not one language now. It will work, right? आप अगर कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है ना आपको, राहुल, आशुतोष और सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, nowadays applications are built on different technology
using different technology, different platforms, right? जैसे आशुतोष ने लिखा है, आप सब लोग पढ़ रहे होंगे कि सी भी यूज कर रहे हैं, सीपीपी भी यूज कर रहे हैं, पाइथन भी यूज कर रहे हैं, जावा भी कर रहे हैं, सारे सी अभी इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट स्किल सेट्स यू हैव, राइट, and what are the resources that you have, right? What are already ready-made components you have, right? So ये सारा पकड़ के वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिसाइड करते हैं. जैसे अभी सर्विसेज लिखना है आपको, तो सर्विसेज कैन बी रिटर्न यूजिंग जावा, PHP, देन WCF, राइट? तो ये या स्प्रिंग बूट या रेस्ट एपीआई बना के लिख सकते हो आप लोग, शेयर पॉइंट के रेस्ट एपीआई ले सकते हो. तो you have a lot many languages and platforms are available. It is you who has to decide मेरे को क्या करना है, क्यों करना है, right? And anybody can talk on anything nowadays. There is no fix, right? आपका C का प्रोग्राम विंडोज पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, और उबंटू पे भी चलता है, सभी पे चलता है, क्लाउड पे भी चलेगा. तो कैसे चलता है ये? they are coming with hybrid, one platform run everything, right? Cloud क्या है? If you go on cloud, you can see, Node.js platform is there, Python platform is there, Java platform is there, Microsoft platform is there. In Microsoft, you can run C++, native C, Borland C++, right? Versions of C++ also, right? So everything is possible, and that is how the trends is. So to understand all programming, right? Syntax तो आपको मिल जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं, बट लॉजिक नहीं मिलता है. लॉजिक बिल्ड करने का काम सी के यहाँ पे होता है. जिसने सी और C++ पे काम किया है, उसका लॉजिक अच्छा होता है, राइट? आई हैव सीन पीपल who are working on high level language, but they don't understand how to write memory efficient, CPU efficient programs, right? स्लो चलता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है, हैंग होता है, क्रैश होता है. ये सब का रीजन आता है मेमोरी हैंडलिंग सही नहीं है. अब मेमोरी हैंडलिंग सही नहीं है तो कौन करेगा ये? जिसको मेमोरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है वही कर सकता है, राइट? या यस, Chaitanya is writing something. Compiler compiles in bulk and throws output. Interpret compiles line by line. Yeah, there is a fundamental difference. Okay, let me first tell what is this compiler, and then we can come to that actually. Chaitanya, thanks for that explanation, helping Varun. See, that is how we need to learn, right? It's not my session, it's all our session, right? कि मैंने ही बात करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. चैतन्य, इवन यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन एक्सप्लेन मी. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू लाइक. डोंट फील शाय फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू. हम सब सेम है, डोंट वरी. So compiler is okay. I was about to give you one example so that the person who is not from computer background also can understand what is compiler, right? So compiler, अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 लोग हैं. कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल. सो 2 पीपल आर फ्रॉम से मराठी, हमारे मराठी भाई लोग हैं, और वन बंदा इज फ्रॉम फ्रेंच. कहीं से कुछ लेना देना नहीं है, तीनों दोस्त है. एक का दोनों का समझता है क्योंकि दोनों नेटिव है. नेटिव है मतलब महाराष्ट्रियन है, राइट? उनको कंपाइलर की जरूरत नहीं है. दे अंडरस्टैंड डायरेक्टली. इंटरप्रेटर, राइट? They can interpret it immediately. बट फ्रेंच वाले को क्या है, उसको समझ में नहीं आता. जब तक वो बोलेंगे नहीं ना, समझा के, अरे भाई कुछ समझा के नहीं, इशारे से बोलेंगे नहीं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो उसने, मराठी वालों ने क्या किया और फ्रेंच वालों ने, दे कम टू अ डिसीजन कि यार किसी ट्रांसलेटर को रखते हैं हम लोग, कि जिससे नहीं, कि मैं आपके साथ में खुल के बात कर सकूं. क्योंकि मराठी सीखना उतना ही डिफिकल्ट है जितना फ्रेंच सीखना है. मराठी वालों के लिए फ्रेंच वालों के लिए मराठी, दोनों की लगने वाली, राइट? सीखते सीखते. सो व्हाट दे डिसाइडेड टू गो विथ अ पर्सन हु नोज बोथ द लैंग्वेज, राइट? हु नोज बोथ द लैंग्वेज इन गुड वे. सो
That, oh, my battery, why? Just minute. Yes. Huh? Yeah, I'm sorry, my battery was draining out. Okay, so oh, sorry. So the interpreter, the translator, between French and Marathi. So what do you understand? What is his job actually? Can you tell me, guys, in chat or by unmuting yourself? There is no hard and fast rule of muting, right? You can unmute yourself, you can talk. आप मेरे से बात कर सकते हो, आप सभी से बात कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, unless and until it's getting disturbed. क्या क्या करता है वो जॉब, ट्रांसलेटर? हेलो हिमांशु, ओके. ट्रांसलेटर क्या करता है? ही अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, राइट? ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, राइट? यस. तो तभी उनका काम चलता है. तो वो जो ट्रांसलेटर है, राइट, ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपाइलर, राइट? ओके, नाउ अंडरस्टैंड. अगर उसने बोला फ्रेंच में कि आई डोंट नो फ्रेंच, ओके, bonjour or something, right? Bonjour is nothing but good morning, right? Hello, hello. My daughter knows that. Okay, so say hey bonjour. So he said good morning. Good morning ये तो इंग्लिश हो गया. तो वो उसको देखना है कि भाई ये मराठी में करना है, मेरे को सुप्रभात बोलना है उसको, राइट? अच्छी लैंग्वेज में. तो वो क्या करेगा? जो ट्रांसलेटर है वो सुप्रभात बोलेगा, राइट? सुप्रभात बोलने के बाद में उसका ट्रांसलेट बाजू वाले को समझेगा. सेम केस अगर उसने बोला कि भाई नाश्ता विष्टा किया कि नहीं, नाश्ता वगैरह केला का नाही तू, अपना नॉर्मल अपना गावठी लैंग्वेज में बोल दिया नाश्ता विष्टा केला का रे दादा. अब ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम फ्रेंच में, बट जो भी बोलते हैं वो क्या कहते हैं, फ्रेंच वाले को समझना चाहिए, राइट? इन हिज ओन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज नहीं. अपना वराडी, जळगावी या भूसावळ का मराठी अलग अलग होता है सबका, राइट? सो एवरीवेयर देयर इज अ ट्रांसलेटर डेडिकेटेड टू दैट फ्लेवर ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो इसी तरह से सी का भी एक फ्लेवर होता है. अभी हम लोग जो है, हम लोगों को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती है. कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 1 and 0, दैट इज कॉल्ड बाइनरी. दो ही वर्ड होते हैं इसके अंदर, 1 और 0, 0 1 और 1 0. इसी के ऊपर उसका लैंग्वेज चलता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी, राइट? अब ये बाइनरी अगर बोलेंगे तो मराठी वाला क्या बोलेगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 और 0 0 0 1, राइट? फ्रेंच वाला क्या बोलेगा? सेम 1 1 0 0. ये नहीं चलेगा ना, ये इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू द ह्यूमन बीइंग, राइट? ये सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज. तो ह्यूमन बीइंग को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो कंप्यूटर तक पहुंचाना, राइट? कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज द टास्क ऑफ द कंपाइलर. समझ में आ रहा है क्या? सो कंप्यूटर को सिर्फ 1 and 0 समझ में आता है. यू टेक एनी लैंग्वेज, फिर वो इंटरप्रेटर रहने दो या तुम्हारा कंपाइलर रहने दो, ट्रांसलेटर रहने दो, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग रहने दो या असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग रहने दो, जो भी रहने दो. assembly instruction will be read by register, but register also insert like 1 and 0 and 1 and 0. तो यहाँ पे जो कंपाइलर है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो कंपाइलर का वर्किंग समझना इज अ बिग थिंग. वो एक बार आपको समझ में आ गया ना, वो एरर भी देता है. वो एरर भी देता है कि आपने अगर बोला कि भाई ऐसा ऐसा लिख,
और वो उसके सिंटैक्स में नहीं बैठता है, उसके रूल में नहीं बैठता है। हर लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं, राइट राइट। आप अगर हर समय बोलेंगे हाँ बघा मी पोलिसाला बोल, बघा मी पोलिसाला बोल, वो बच्चा क्या बोलेगा? जा तो पोलिसाला बोलो, एक्सेप्शन रेज, काम ही खत्म हो गया, नहीं चलेगा ना हमेशा अपन ये करेंगे। तो जब पहली बार उन्होंने बोला कि पुलिस वाला बोल, उसी समय वो लैंग्वेज बोलती है कि नहीं, ये डांटना गलत तरीके का है, इस तरह से नहीं डांटते। सो या सो इसलिए हर लैंग्वेज के जो रूल्स है वो फॉलो करने का जो टेक्निक है, दैट हैज बीन डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द लैंग्वेज, अंडरलाइन बाय द अंडरलाइन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाइलर। वो हम लोग प्रोग्राम करते समय देखेंगे हम लोग वो कैसा एरर देता है, क्या देता है। ओ सॉरी, व्हाट मेक्स टर्बो सी सी प्लस प्लस। अच्छा, अभी टर्बो सी कैसे रन करना है इसको, राइट, कहाँ से रन करते हैं, कैसा होता है ये, राइट, काला दिखता है, पीला दिखता है कि लाल दिखता है, राइट, ये सब सवाल है अपने पास। तो टर्बो सी दिखता ऐसे है, दिस इज टर्बो सी। दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंने छोटा करके रखा है उसको। Can't see this. हाँ, हेलो, somebody said you can't see. No, sir, it's not visible. He said. Not visible, not visible. Okay, let me share that. नहीं, एक मिनट, एक मिनट। यही सर एक्चुअली दिख रहा है क्या अभी? Yeah, now it's visible. yes sir. नाउ विजिबल ना? हाँ, ओके। ग्रे कलर शीट, ग्रे कलर शीट। सलीम दिख रहा है आपको? ब्लू कलर का सीरिंग दिख रहा है क्या किसी को, या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. चैतन्य Sir, it's visible. दिख रहा है ना? विजिबल है ना? हाँ। So this is just an editor of C. So for this is equally important for those know the program. This may be nothing, right? But for those who don't know computer as well as who don't know programming, right? For them this is very important actually. So try to understand from their perspective, right? So I'm starting from the very basic actually. Okay, don't consider yourself as a very expert level programmer. Consider that you do the person who is sitting in front of us don't know anything, and from that background I am starting actually. And I want this person, you know, who don't know anything, a good programmer by the end of my course. That is my goal. Let me see how much I can succeed. Okay, I think so we reshare. Can you see PPT? Mouse. Yes, sir. You also can see PPT? Okay, great. Thank you. So Turbo C is developed in 1972. So almost 40 years back, right? 45. So you can imagine the age of the language, right? And still it is going on. I'm teaching that, right? And you are sitting here to learn that. So that is the beauty of Turbo C and the power of Turbo C. C language actually. And Turbo C is the editor that I just showed you, is an editor who has a compiler inbuilt into it, from where we can write a program and run it. So originally developed by Dennis Ritchie in 72, and then it was purchased by Borland. Borland sold to Turbo C++ compiler to company called, थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, don't worry about it, called Embarcadero Technologies, and this becomes later to C++ builder. There are many compilers for C++ programming language, but what makes Turbo C++ special is its speed of compilation of the program, size of the overall software. It's you know, okay, let me check. Can anybody tell me what is the size of compiler? Can you see this?
Can you see my screen? सारा content दिया है। Can you see my screen? No, sorry. Hello, Nagma, no? Okay. Just a minute. Share content. Share. Now just check if my screen is visible to you guys. You will be surprised, you know. Is it visible now? Ah, thanks, Emily. So how much is the size? Can you check? 5130 KB. How much it is? आपका फोटो का साइज कितना होता है? आप जो फोटो निकालते हो Around 4 to 5 MB. 4 to 5 MB, right? Right? Yes, sir. ये कितना साइज है? नहीं है सर, 5 MB. ये 5 MB साइज एक सॉफ्टवेयर का है जहां पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अभी के जो सॉफ्टवेयर्स है उनको अगर विजुअल स्टूडियो का बात करूं मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 GB लगता है उसको। GB you just calculate the difference between this from KB to GB, right? तो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत पावरफुल है and which is being utilized since long actually, right? More than my age. Okay. Okay. So this is it visible, my PPT? No. PPT दिख रहा है क्या आपको? No, sir. क्या हो रहा है? PPT नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है यार, शेयरिंग का। ओके, नाउ सी। सो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? कल के सेशन में हमको प्रोग्राम करना ही है, राइट? तो प्रोग्राम में आपने को क्या लगेगा? ये टर्बो सी का सॉफ्टवेयर लगेगा, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड, you can search in Google or you can check this link. I'll paste that on YouTube, right? Both the links from where you can download this, right? And you can use that one, right? And install on your desktop and laptop. If you have desktop and laptop, you can use this. If you have mobile, then we have an alternate. You can go to online GDB. ऑनलाइन कंप्यूटर है, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, चलता रहेगा वो, इंटरनेट चाहिए सिर्फ। समझ में आया क्या? मैं दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. हाँ चैतन्य, थैंक्स। हाँ अजरी, थैंक्स। ओके, तो ये जो है ये onlinegdb.com, दिस इज वेयर यू कैन कंपाइल योर सी प्रोग्राम इन अ ब्राउजर। अगर आपके पास मोबाइल है, मेमोरी कम है, स्पेस कम है, हाँ बस इंटरनेट रखो आपके पास अच्छा वाला, सो दैट यू कैन प्रोग्राम ऑन इट, राइट? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी मेरा सेशन आप अटेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड रेंज इज देयर, राइट? अगर नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? ओनली थिंग इज दैट you subscribe there so that you can get notification as and when I talk. So I think I'm done for today. We'll see you tomorrow. So any question for till so far? Because today those people who are more interested to see Hello World, I may say sorry because I'm not touched to that point, and that is my goal actually. Okay. So anybody has any question?
जिसको कुछ आता नहीं है उन्होंने भी पूछा तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, आना ही चाहिए बोल के। हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम देयर टू आंसर यू गाइस। हाँ, no sir, please send link for download Turbo software. I'll send that on YouTube comment, so you can go there and you can use that because I want you to be there everybody, because वहीं से अपना कम्युनिकेशन होने वाला है। क्योंकि ये जो अभी सेशन देखा आपने, अपना ये थर्ड सेशन है राइट, आज का 50 मिनट का, तो 100 ऑलमोस्ट 125 मिनट तो होगा रहेगा, 125 मिनट ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स का सेशन व्हाट्सएप पे देना या कहीं से देना इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द रीजन आई चोज दैट यूट्यूब एज अ मीडिएटर राइट। और आपको इमीडिएट समझ में आना चाहिए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। देयर इज नो गोल कि यूट्यूब से कमाना वगैरह, वो पता नहीं मैं कब कमाऊंगा, बट अभी तो मेरे को आपसे काम करना है राइट, ठीक है। दैट इज नॉट अ गोल माई, I may remove those videos also, that's not a problem. So please visit that, subscribe that channel, and put your comments there, you know. So thanks lot. Thanks everybody for joining me and starting on this session. For those who got problems, you know, battery drain हो गई, मोबाइल का इंटरनेट खत्म हो गया राइट, मेमोरी प्रॉब्लम हो गया, so for those I'll be uploading this video later in the time, so you maybe see it tomorrow morning. About the assessment that will be there at the end of session, we need to attend here only, or even watching YouTube video can help. Chaitanya, that is a good question, I forgot that, thanks for that. On certificate point of view, yes, you all will be getting certificate provided you pass my exam and secure minimum 60% mark. That is my condition. If you pass it, yes, you carry the knowledge and I am happy to award the certificate. But just for participation, I am not going to give the certificate. That is also sure, right? And no session will be repeated, but you can see you can watch all the session on the YouTube. I'll be uploading only for you guys, right? So you go there and watch it. And one more thing, as this is free, I want to reach as many of you guys, right? So even till the tomorrow evening, you can call your friends. If you believe on me from technology point of view, you call your friends so that we can my purpose will reach out to maximum people, so that will get solved through you. Fine. So thanks everybody. Thanks everybody. And my request is to be interactive, like Chaitanya, Shamli, Salim, right? Be interactive, Ginny. So thanks all. Let's talk tomorrow, 7 p.m. Thank you. Audio Jungle.